العالمين ہو گئی بارش الصلاة بارش ہو رہی والسلام ہے على رسول وعلى اشد الحسن پھر یہ ہوا ٹھنڈا ٹھنڈا ہو گیا محمد محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اہل ذکر سے سوال کر لو اگر تم نہیں جانتے. ہمارے پاس سارے مسائل جو کھل کر کے سامنے آئے ہیں زیادہ تر سوال اور جواب بہت زیادہ پوچھا گیا ہے، بہت زیادہ ہمارے پاس اجازت بھی ہے، ورنہ دوسرے مذہب میں بہت سے لوگوں نے روک لگا رکھی تھی کہ سوال نہ کیا جائے. یہ کتاب صرف یہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. مثلاً عیسائیوں میں ہے تو ان کی جو کتاب ہے مذہبی، ان کا جو پاپ ہے وہ پڑھے گا، جو فادر ہے وہ پڑھے گا، اور جو یہودیوں کا ہیڈ ہے وہ پڑھے گا. اسی طرح سے اور بہت سے مذاہب ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ نہیں، جتنی چیز ہمارے پاس دین میں سب کو پڑھنا ہے. بہت زیادہ تاکید ہے کہ تھوڑا سا ہوشیار ہوا، سمجھدار ہوا تو اس کو یہ احساس ہو کہ کوئی چیز ہم پر تحمیلی نہیں، زبردستی لاد نہیں دیا کہ پہلے سوچو، سمجھو، فکر کرو، بہت زیادہ پڑھو. زیادہ قرآن ہمارے پاس اصل کتاب ہے تو بہت زیادہ پڑھنے کی تاکید، حدیث ہمارے پاس اصل ہے تو بہت زیادہ پڑھنے کی تاکید، اور پھر پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپس میں سوال اور جواب. نبی کے دور میں بھی تھا، امام کے دور میں بھی تھا، اور آج بھی مراجع کرام اور سب ماشاءاللہ سائٹیں ان کی کھلی ہوئی ہے کہ جتنا ہو سکے مسئلہ پوچھو، جتنا ہو سکے سوال کرو، اس لیے کہ سوال کے اندر خود علم پوشیدہ رہتا ہے. جتنی باتیں پوچھی جاتی ہیں اتنی ہی زیادہ ان کے لیے تمام مسئلے حل ہوتے چلے جاتے ہیں. اور مراجع کرام کے لیے ہے آیت اللہ حضرات، کیونکہ زیادہ تر عراق میں ہے، میں ہے، نجف میں ہے، لہذا ان کو جیسے حالات بتا دیے جاتے ہیں فتویٰ ایسے ہی دے دیتے ہیں. مثلا کیونکہ وہاں سے پورے صحیح حالات اگر نہ بتائے جائیں تو دیکھیں گے کیا لکھ کے بھیجا ہے، اس حساب سے. مثلا جیسے کل جمعہ ہے، کل جمعہ کے بارے میں آیت اللہ صاحب کو جو بتایا گیا ہوگا کہ بہت بڑا فساد ہو جائے گا، بہت گڑبڑ ہے، بہت خطرہ ہے، ورنہ بہت سے انڈیا میں چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہیں وہاں پر اتنی بات نہیں. صبح آپس میں سب ماشاءاللہ میل ملاپ ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. لہذا یعنی یہ مسئلہ دیکھا جائے تو بہت ایسی جگہوں پر لاگو ہوگا جہاں پر صحیح میں خطرہ ہے، جیسے میرٹھ ہے، مظفر نگر ہے، انڈیا میں اور جگہوں پر جہاں ہوتی چلی آئی، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے. لیکن دیکھا جائے تو یہاں پر ایسا نہیں. پھر بھی ہمارے کچھ نوجوانوں نے اپنا مزاج بنایا ہے کہ ٹھیک ہے 2 بجے ہو جائے تو کوئی ایسا نہیں ہے، صرف جو ہے جمعہ کا خطبہ مل جائے گا، اور جمعہ کے جو فضیلت میں آپ چل کر کے آئیں وہ مل جائے گا. لیکن اصل نماز ظہر کی ہو جائے گی، ظہر کی واجب ہو جائے گی آپ کے اوپر، اور عصر کی تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جمعہ کی بنیت مطلوب پڑ جائے گی، یعنی معاملہ الٹا ہو جائے گا. ابھی تک تھا جمعہ ادا واجب خطبۃ اللہ پڑھتے تھے، اب ہو جائے گا نماز جمعہ میں پڑھتا ہوں 2 رکعت اس امام حاضر کے پیچھے باجماعت بنیت مطلوب، رجائے مطلوب کہ اگر خدایا کچھ گنجائش ہے تو ٹھیک ہے یہ حاضر ہے، ورنہ ٹائم نکل گیا ہے، اس کا ٹائم نہیں ہے. لہذا اس میں جمعہ کے جو فضائل میں مثلا دعا ہے، خطبہ ہے، یہ سب مل جائے گا. لیکن نماز ظہرین انشاءاللہ واجب ادا کی جائے گی، یعنی ظہر آپ پڑھیں گے واجب کی نیت سے، عصر جماعت کے ساتھ ہوگی. حالانکہ دیکھا جائے تو یہاں پر یہ مسئلہ لاگو نہیں ہو رہا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مطلب نہیں ایسا ہو گیا ہے، اور حالانکہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور دعا بھی ہے کہ نہ ہو، ابھی بھی ہم نے دعا کیا. دوسرے یہ کہ جن کو شک ہے ایسا
अगर वो दूर से आना चाह रहे हैं तो ना आए तो कोई उनके लिए ज़रूरी नहीं। मतलब सराज शेख से आते हैं या जो है कुछ लोग नौशेरे से आते हैं तो रास्ता लंबा है थोड़ा सा, लेकिन जो गली वाले हैं वो अगर वो टाइम से आ जाते तो हो जाता, अपनी दर्दी गली, अपनी पीछे वाली गली। और कुछ मंडी के लोग अगर आ जाते तो ये लोग देख रहे पहचानते सफ़ेद कुर्ता पैजामा टोपी लगाए हुए हैं, तो खुदा न खास्ता यहाँ पर ऐसी हसासियत नहीं थी। लेकिन अभी समाज में अपने आप ही ऐलान कर दिया 2 बजे तुम भी चुप रहे कि जब फतवा पूछ लिया गया है और लोगों ने मिजाज बना लिया है, वरना यहाँ के लिए वो फतवा लागू नहीं थी। उन्होंने खुद कह दिया जहाँ पर ख़तरा है वहाँ पर ऐसा कर लिया जाए तो बेहतर है। चूँकि जुमा इंशाल्लाह जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तब मुकम्मल तौर पर वाजिब होगा। अभी ये वाजिब तख़ीरी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन एक चीज़ जब तहत बना लिया तो अब खुदा न खास्ता इख्तिलाफ हो जाएगा। यानी कुछ लोग 2 बजे का ऐलान कर दिए और सोचे हुए हम कहते नहीं साहब अपने टाइम पर होगी, तो ये इख्तिलाफी बात हो जाएगी। लिहाजा हमको थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा कि इत्तेहाद रहे आपस में, इख्तिलाफ ना होने पाए। चूँकि खुदा न खास्ता अब अगर कुछ हुआ तो एक तो बात जाएगी मर्जा तक कि साहब देखो मर्जा ने कहा था, ये लोग नहीं माने। दूसरी बात ये जाएगी कि आपस में इत्तेहाद तो माशाल्लाह बहुत काम हो रहा है। ये सारी जमात इत्तेहाद के लिए है, ये जुमा इत्तेहाद के लिए है, आपस में इफ्तार करना इत्तेहाद के लिए है, एक जगह पर आकर के बैठना इत्तेहाद के लिए है, हुक्म है कि आपस में हाथ मिलाएं नमाज के बाद, ये इत्तेहाद के लिए, एक दूसरे खैरियत पूछे। यानी जब इतना ज़्यादा सब अल्लाह ताला ने एहतमाम किया इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, तो ठीक है एक दिन के लिए हम थोड़ा सा अपना दिल नर्म कर लेंगे और 2 कदम पीछे हट जाएंगे कि इंशाअल्लाह इत्तेहाद बरकरार रहे। और उनको भी एक मैसेज चला जाए कि अगर वो, हालांकि हमको जहाँ तक याद है कि इससे पहले भी टकराया तो उन्होंने 2 बजे के नहीं 12 बजे के ऐलान किया कि 12 बजे तक ये रंग खेला जाएगा, 12 बजे के बाद इनके जुमा का टाइम है बाकायदा, याद है हमको बहुत पहले टकराया। लेकिन ये अब पता कहाँ से इन्होंने निकाला 2 बजे का, वरना तकरीबन जब भी होली खेली गई है 12 बजे तक 11 बजे तक। लिहाजा एक मैसेज हमारी तरफ से भी चला जाएगा मुसलमानों की तरफ से कि तुम कितने ही ज़्यादा आगे बढ़ो और पीछे हटने के लिए तैयार है। हम अपने दीन पर है, अपने इस्लाम पर है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, हमारा। यानी अपने पास कितनी नरमी है, आप देखो कितनी लेने इसलिए कि यानी कुरान है, हदीस भी नहीं, कुरान में अल फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल, फितना जो है कत्ल से भी ज़्यादा शदीद है कि जहाँ पर देखे फ़ौरन पीछे हट जाए। ठीक है माशाल्लाह पूरे साल भर जुमा पढ़ रहे हैं, एक जुमा में जो है अब नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, हमारी नीयत थी, सवाब था, सब कुछ था। और जो है अगर जो है लेट हो रहा है तो ठीक है, आयतुल्लाह साहब को जैसा बताएगा और उनका दिया है, हम कोशिश करेंगे पहुँचने की। और इसमें एक मसला ये भी याद रखें कि बहरहाल चूँकि ज़ाहिरी तौर पर तो आपको दिखेगा कि नहीं कोई फेंक रहा है, सड़क खाली है, लेकिन छतों पर से भी छींटें आ जाती हैं। तो ऐसा हो जाए तो लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहस करने चुपचाप वापस हो जाइए। आप देखिए टाइम है तो कपड़ा बदल के आ जाइए नहा के, नहीं टाइम है तो इंशाल्लाह आप जो चल दिए थे घर से आपको सवाब मिल जाएगा। इसी को कहते हैं तौफीक, यानी जो पूरा हम अल्हम्दुलिल्लाह सब सही कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक है कि एक दफ़ा थोड़ा सा तौफीक पीछे हट जाती है तो आप देखिए कितना जहन परेशान होता है। पूरा रास्ता हमवार होना ये तौफीक है, मस्जिद में जाना ये तौफीक है, आपकी सेहत साथ देना ये तौफीक है। अल्लाह ताला ने ऐसा मौसम बना सारी, तो लिहाजा जो हमारे पास दुआओं में कहा गया खुदाया इसकी तौफीक दे, यानी डायरेक्ट लोग हज के लिए नहीं कहते हज करवा दे, हज की तौफीक दे, यानी सारे रास्ते खुले रहे, बीमारी ना हो, सेहत गड़बड़ ना हो, रास्ता बंद ना हो, कोई फाजिर व फासिद जो है जालिम न मुसल्लत हो जाए। पहले मुसल्लत हो जाते थे बड़े बड़े जालिम, हज नहीं हो पाता था, ज़ियारत नहीं हो पाती थी। बहरहाल ये जिसको कहा जाए यानी बदिले नाखास्ता कि ठीक है कुछ लोगों ने 2 बजे कह के मिजाज बना दिए, तो पैगाम 2 अदद न चला जाए, लिहाजा जो आ जाएंगे तो इंशाल्लाह 2 बजे ऐसे ही नमाज नियत मतलूब पढ़ा दी जाएगी रजाअन कि खुदाया ठीक है तेरी बारगाह में आज के दिन यही अगर तुझको मंजूर है तो ये हाजिर है, लेकिन नमाज ज़ोहर वाजिब हो जाएगी। नमाज ज़ोहर में पढ़ता हूँ 4 रकात अदा वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, ये नियत करना पड़ेगा। अब उसमें रजाए मतलूब वगैरह का जुमला नहीं आएगा, फिर इंशाल्लाह असर की हो जाएगी और खुतबा भी मुख्तसर रहेगा, जो कि डिस्टर्ब होगा। बहुत से लोग हो सकता ना आए, बहुत से लोग हो सकता चले तो कहीं से कोई छींट आ जाए, चूँकि छींट जो पड़ेगी पहले वो पाक नहीं, चूँकि ऐसा तो है नहीं कि बहुत सी चीज़ें बनी बनाई आ रही है डायरेक्ट डाल दिया, नहीं बनाते तो हाथ पड़ता ही है, जब हाथ पड़ता है उसमें तो बहरहाल वो नजीस है। नबल मुशरिकून नजीस, कुरान की आयत है कि मुशरिक नजीस है, लिहाजा एहतियात करें, उसमें बहस मुबासा नहीं। आप चल दिए, आपने नियत कर लिया और माशाल्लाह बात आके देखिए सवा की बात चल रही थी
तो आपको ये भी बयान कर दिया जाए कि मस्जिद तक जो लोग आते हैं बिलखुसूस जो चल करके आ रहे हैं, मतलब गली में दूसरी गली में करीब करीब में है, तो हदीस में आया है कि जैसे ही इंसान कदम रखता है मस्जिद के लिए, एक कदम पर उसको 10 हसना मिलता है, 10 नेकियां उसके खाते में आती हैं और 10 गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं और 10 दर्जा उसको बढ़ा दिया जाता है। हर कदम पर इतना होता है तो इंशाल्लाह जितना चल के आप आएंगे उतना सवाब मिल जाएगा। बकिया आपकी नीयत थी कि जाएंगे लेकिन कुछ हो गया नहीं पहुंच पाए तो इंशाल्लाह उसका भी सवाब मिल जाएगा। सलवात भेजें आप। लिहाजा बहरहाल इंशाल्लाह जो आए तो अब 2 से ज़्यादा लेट न करें। हो सकता है कि अगर 2 से पहले ही लोग पहुंच गए तो खुतबा पहले ही दे देंगे, नमाज एकदम सही 2 बजे हो जाएगी, और अगर लेट हो गए 10-5 मिनट बाद खुतबा हो जाएगा और फ़ौरन नमाज हो करके इंशाल्लाह हो जाएगा। इसमें भी सिर्फ खुतबे की फजीलत के लिए, वरना अगर जो है थोड़ा सा होता तो मना ही कर देते कि नहीं ठीक है आप लोग अपने अपने घर पढ़ लीजिए, लेकिन खुतबे की फजीलत है, मस्जिद तक आने की फजीलत है, तो हम क्यों माने बने, हम क्यों अपनी तरफ से ऐलान कर दें कि नहीं आप ये भी मत करो। नहीं, जितना कोशिश करें इंशाल्लाह आ सके तो आए, क्योंकि हर चीज़ की फजीलत अपनी जगह पर है। इंसान जो कोशिश करता है अल्लाह ताला उसकी भी जज़ा देता है, क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला का एक रहम व करम ये भी है कि कोई गुनाह करेगा तो गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला बड़ी देर तक मोहलत देता है, मलाइका को मना कर देता है कि अभी इसका गुनाह न लिखा जाए, अभी इसकी जो सज़ा है न लिखी जाए। बहुत यानी उसको जो है टाइम देते देते फिर अब हुक्म होता है कि लिख लिया जाए, लेकिन जो है सवाब के लिए कि आपने किया भी नहीं, आप सिर्फ नियत कर ले हुक्म होता है, मतलब को जो दाहिनी तरफ बैठा हुआ है लिख लो। यानी मसलन आपने नियत कर लिया कि माशाल्लाह नमाज़ शब की बड़ी फजीलत है और ये दर्स में आपने सुना, यहीं पर नियत कर लिया कि आज से मैं पढ़ूंगा, हालांकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, आपका खाता शुरू हो गया, आपका सवाब ये भी आपके लिए गोया ये जो है दाहिना जो मलक है ये लिखना शुरू कर देगा। यानी बाएं वाले को ऐसा हुक्म नहीं कि फ़ौरन हर चीज़ को लिखे, बाएं वाले को आर्डर है कि रुक जाओ, इंतज़ार कर लो। यानी कुछ रिवायतों में 24 घंटा, कुछ में 7 दिन तक इंतज़ार कर लो, शायद तौबा कर ले, शायद रुजू कर ले, मेरा बंदा है, फिर वापस आ जाए। उसके बाद फिर जो है अगर उसका दिल सख्त हो गया है और फिर उसी गुनाह पर मुसिर है तो फिर वो गुनाह लिख लिया जाता है। एक बात हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि ये भी कुरान मजीद में है कि जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह के लिए जितना गुनाह किया है बस इतना ही उसको जो है सज़ा मिलेगी, लेकिन सवाब के लिए ये है कि एक इंसान ने नेकी किया तो एक नेकी का बदला उसको 10 बराबर दिया जाएगा। मन जा बिल हसनत फलहू अशरो अमसालेहा, 10 बराबर, वो भी ये आम दिनों में 11 महीने, अभी ये महीने में ये बदल गया, अब 10 नहीं, अब तो एक नहीं 70 के बराबर माशाल्लाह अभी अर्ज भी किया है। और रोज़े के सवाब में एक फजीलत जो है ये भी आगे पेश कर दी जाए कि अभी तक आपने नमाज की सुना, इफ्तार की सुना, जो रोज़ा रखते हैं उसका सवाब क्या है, ये भी पूछा गया मौला से कि मौला जो रोज़ा वाजिब अदा कर रहा है अपना उसका सवाब क्या है। तब इमाम ने फरमाया कि एक रोज़ा रखने का सवाब इतना है कि पूरी दुनिया अगर पहाड़ बन जाए सोने की और अल्लाह के राह में कोई वो सोना दे दे तो उसका सवाब एक तरफ और एक रोज़ा रखने का सवाब एक तरफ। ये ना समझे आप कि अल्लाह ताला ने ऐसे आर्डर दे दिया था मिल अर्ज़ का जुमला आया हुआ है हदीस में भी है, कुरान में मिल उल अर्ज़ ज़हबन, यानी पूरी कायनात में जितनी ज़मीन है उतना बड़ा पहाड़ बना करके आप जो है राह खुदा में सोना दे दे तो जो सवाब है उससे बेहतर अल्लाह ताला एक रोज़े पर ज़्यादा देने के लिए तैयार है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह ताला अपने बंदे को किस तरह से अदा करने के लिए तैयार है और कितना ज़्यादा देना चाहता है। अलबत्ता ये सारे सवाब वगैरह और जज़ा वगैरह के बहस चल रही है, इसमें हमारे जहन में ये ना आने पाए कि जब अल्लाह ताला ने कहा जैसे छठे इमाम के दौर में हो चुका है, लिहाजा मैं पेश कर दूँ, चूँकि कभी कभी ये जहन में आ सकता है। छठे इमाम के दौर में सुना है कि नहीं कि जो गुनाह करोगे तो बस उतना नहीं मिलेगा और नेकी करोगे तो 10 बराबर हो जाएगा, लिहाजा उसने गलत फ़ायदा उठा लिया। गया देखा एक ठेले वाला जो है सेब बेच रहा है, आहिस्ता से सेब उठाया जेब में छुपा के रख लिया। आगे देखा रोटी वाला है कोई बातों में लगा हुआ, रोटी उठाया और छुपा के थैले में रख लिया। फिर आगे गया उसने 3 जगह पर 3 चोरी की और चोरी करने के बाद फिर रास्ते में तकसीम कर दिया, यानी जो गरीब थे बांटा और इमाम के पास आया, कहा कि मौला आपने बताया था गुनाह करने पर 3 और जो है सवाब का काम करने पर 10,
तो मैंने 3 गुना किया तो 3 ही मिलेगा, लेकिन जो कार्य सवाब किया तो ये 30 हो गया, 30 में से 3 घटा लीजिए 27 बचा, 27 तो मिलेगा। इमाम ने कहा आगे वाली आयत नहीं पढ़ी, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ियों से कबूल करेगा, चोरों से कबूल नहीं करेगा। बस आखिरी बहस में 1-1.5 मिनट और बचा हुआ है, तो इसमें इशारा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना ज़्यादा यानी नरमी है, इतनी ज़्यादा लय्यनत है कि आप ये नमाज जुमा नहीं, नमाज जुमा के अलावा जो अभी जो है मसलन चल रहा है कि 2 बजे हो जाए, तो ये आम नमाजें जो इसमें भी अल्लाह ताला ने इतनी छूट दे रखी है, ये तो फतवा पूछ लीजिएगा, फतवा की भी ज़रूरत नहीं थी। यानी खुद आदमी का जहन भी काम करता है कि जब ये नमाज जो रोज़ वाली है इसमें इतनी छूट है कि आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो, लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ लो, वजू से नहीं पढ़ सकते तो यानी आप देखिए खुद से पहले से छूट दे रखी है। लिहाजा मतलब फतवा मांगना वो करना, हर बात पर फतवा भी नहीं मांगना चाहिए, इसलिए एक मुस्तहिद की बड़ी अहमियत होती है, आयतुल्लाह की बड़ी अहमियत होती है। कुछ थोड़ा सा हुआ फ़ौरन फतवा, और फतवा जो है ऐसा उसको करते हैं कि खुदा न खास्ता कुछ लोग मान ले कुछ लोग न माने, तो ये फीलिंग देखो ये मुस्तहिद वाला ये मुस्तहिद वाला नहीं, ये आयतुल्लाह को मानता है, ये आयतुल्लाह, ये सब जहन में फीलिंग लाई जाती है। और ये भी आला पैमाने पर होता है दिखाने के लिए कि लोग कहते हैं देखो मर्जा की इतनी चलती है, या कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, ये कुछ लोगों ने तकब्बुल नहीं किया, कहाँ सब लोग, ये करने के लिए भी ऐसा करवाया जाता है। लिहाजा खुद इसमें समझ में रोज़ की नमाज में जब इतनी छूट है तो ये तो बहरहाल जुमा है, जुमा के लिए पहले कह दिया जब इंशाअल्लाह इमाम तशरीफ लाएंगे तो मुकम्मल तौर पर वाजिब होगी, तो आपकी जान को ख़तरा है, फसाद का ख़तरा है, तो इंशाअल्लाह आप उसी टाइम पर यानी 2 बजे करीब आ जाएं, कोई वो नहीं है। और रास्ते में कहीं कुछ हो जाए, छींट वगैरह पड़ जाए तो बहस मुबाहसे की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप वापस हो जाइए। अगर टाइम रहा तो कपड़ा बदल के आइए, वरना इंशाल्लाह आपको सवाब मिल गया, क्योंकि आप जो चल दिए अपने घर से आपके खाते में सवाब लिख दिया गया। अब खुदा न किसी शरीर ने किसी ने ऐसा, हालांकि जानबूझ के ऐसा नहीं करते, मतलब छतों पर खेल रहे हैं, छींटें पड़ गई, सड़क पर आपको सामने नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन छत से जो थोड़ी आप देख लेंगे कि कुछ किसी ने कर दिया है, शरारती होते लोग। लिहाजा कहीं से भी हमारे पास बहस मुबाहिसा गुंजाइश नहीं है, खुदा न खास्ता बड़ी नरमी के साथ, बड़ी लय्यत, क्योंकि इस्लाम में बड़ी ज़्यादा नरमी है और हमारा मज़हब बहुत सहल मज़हब है, बहुत आसान मज़हब, यानी तमाम मज़ाहिब को मिला करके देखें तो देखने में लगता है इस्लाम में सख्ती है, सख्ती नहीं है, बहुत नरमी है, बहुत लय्यनत है। लिहाजा जब शरीयत ने हर चीज़ को पहले ही से बता दिया है कि वضو कर रहे थे हमेशा, अब नहीं कर पा रहे हैं, मरीज़ हो गए तो ये कर लो, तयम्मुम कर लो। बहरहाल आज एक मसले की तरफ और इशारा कर दिया जाए, क्योंकि जैसा कि वादा किया था, ये मसलन तयम्मुम कैसे करें, चूँकि मरीज़ हो गए, पानी छूने की हमको इजाज़त नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया, या जो है पानी मिल नहीं रहा है, बहुत कोशिश किया ऐसी जगह पर पानी दिखाई नहीं पड़ रहा, या जो है पानी मौजूद है लेकिन बड़ी मशक्क़त से हासिल होकर नहीं पहुँचे वहाँ तक, या हमारे जेब में मसलन 100 रुपया है और हम सफ़र करने के लिए रखे हुए हैं, पानी वाला कह रहा 100 रुपया की बोतल मिलेगा, तब वضو, तो उसमें यह है कि अगर तुम उससे कुछ गुंजाइश करा लो, देख लो कि हाँ 20 रुपये में पहुँच जाएंगे और 80 रुपये में काम चल जाएगा, तो पानी ख़रीद करके वضو करो, वरना वضू न करो, तयम्मुम कर लो। तयम्मुम के लिए बहुत आसान तरीका है कि दोनों हाथों को मिलाएं और मिलाने के बाद पाक साफ मिट्टी पर ये पत्थर जो असली पत्थर बनाया हुआ पत्थर नहीं, जैसे ये सब बनाए हुए असली पत्थर जो ज़मीन से निकलते हैं, उस पर आप हाथ मारे कह के कि मैं तयम्मुम करता हूँ बदले वضू के या बदले गुस्ले जनाबत के। मतलब रात में उठे, देखा कि अब 2 ही मिनट बचा, अजान होने वाली, गुस्ले जनाबत करेंगे तो हमारा रोज़ा भी चला जाएगा और गुस्ल भी नहीं हो पाएगा, तो आप पहला काम तयम्मुम कर लीजिए, जल्दी से तयम्मुम कर लीजिए, नियत कर लीजिए, उसके बाद गुस्ल कर लीजिए, उसके जो है नियत बदल जाएगी। वضू के बदले कर रहे हैं तो वضू के बदले, अगर जनाबत के बदले तो जनाबत के, मैं तयम्मुम करता हूँ गुस्ले जनाबत के बदले, अदा वाजिब कुर्बतन इल्लाह, ये कह के ज़मीन पर मारा आपने और फिर झाड़ लिया, अंगूठी वगैरह उतार लेंगे, और ये टोपी है या कुछ है तो हटा करके बाल के उगने की जगह से इस तरह से पूरा मलते हुए लाएंगे, यहाँ तक ला लिया, फिर जो है ये बाएँ हाथ से दाहिने हाथ के यहाँ पर रखेंगे, रख करके ये वाले हाथ को खींचेंगे, ये हाथ नहीं खींचेंगे, गलत हो जाएगा। इसी तरह से ये हाथ यहाँ रखेंगे, खींच लेंगे, अंगूठी वगैरह उतार देंगे, और इसी तरह से एक दफ़ा और मारेंगे, और मारने के बाद छाड़ करके सिर्फ हाथ पकड़ लेंगे, ये है तयम्मुम। इसके बावजूद भी चूँकि मसला थोड़ा सा बहुत अहम है, अगर कोई नौजवान कहेगा नहीं समझ में आए तो इंशाल्लाह ये मसला दोहरा दिया जाएगा, चूँकि तयम्मुम वगैरह ऐसी चीज़ है कि बार बार इसको बताना चाहिए। सलवात भेजा